Good afternoon, beta. Good afternoon, everyone. How is your Sunday? क्या बात है भाई, सब बड़े चुपचाप हो? Am I audible? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया होना ही चाहिए। माइक नहीं है, चलो जी माइक मिल जाएगी। ये जो क्वेश्चन अभी डिस्प्ले हो रहा है, इसको आप सॉल्व कर रहे हो? यस सर। इसका कौन सा पार्ट हो गया? बी हो गया। बी पार्ट हो गया, हाँ ठीक है। बी पार्ट सबसे पहले होता है, ठीक। बी पार्ट हो गया, ए पार्ट करके बताओ। बी पार्ट तो ऑब्वियस से हो जाएगा। जैसे जो गिवन है, साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ फाई, this is A, and this will give you, by CD formula, this will give you 2 sine theta plus phi by 2 cosine theta minus phi by 2. It is equal to A. This is one equation. Similarly, using cos theta plus cos phi equals B. From here, again applying sitting formula, 2 cos theta plus phi by 2 and cosine theta minus phi by 2 is equal to B. And from first and second relation, you can see clearly that if you divide, so the term cos theta minus phi by 2 and 2 gets cancelled, the 2 factor cancelled, and answer आ गया तुम्हारा। तो 1 by 2 कर दो आप, तो आपको मिल जाएगा tan theta plus 5 by 2 की वैल्यू, it comes out to be A by B. So B part is done. B result is proved. अब how do you get tan theta minus 5 by 2? tan का हाफ एंगल है, half angle of tan can be obtained if you get complete angle of tan, means अगर tan a पता है तो tan a by 2 क्रिएट किया सकता है, लाया सकता है। अगर साइन ए मालूम है, साइन ए की वैल्यू पता है तो भी tan a by 2 निकाल सकते हैं, और अगर आप cos a की वैल्यू पता है तो भी tan a by 2 निकाल सकते हैं। cos a भी पता है। हाँ, तो टेंजेंट अगर आप बात करोगे, टेंजेंट a by 2 कैन बी obtained from tan a as well as sin a as well as cos a। सबसे इजीली अगर निकालना है तो cos a। क्यों? क्योंकि cos a का tan a by 2 के, cos a एंड tan a by 2 के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, दैट tan square a by 2 is equal to 1 minus cos a upon 1 plus cos a। Because cosine a is equal to 1 minus tan square a by 2 by 1 plus tan square a by 2, एंड वहाँ से कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करके ये आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये चीज़ है, मतलब अगर मुझे tan a by 2 चाहिए तो आई विल बी बेसिकली लुकिंग फॉर cos a, मतलब इस एंगल के डबल एंगल का cos। तो इसके डबल एंगल का cos मतलब cos थीटा माइनस फाई आपका टारगेट होना चाहिए। सो टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना हमें? cos थीटा माइनस फाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। और वो तुम्हें दिख रहा है कैसे? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो, तो you will see that a square plus b square comes out to be what? It comes out to be sin square theta plus sin square phi plus
cos square theta plus cos square phi plus 2 times sin theta sin phi plus cos theta cos phi. And that means sin square theta plus cos square theta 1, sin square phi plus cos square phi 1. तो ये 1 plus 1 2, तो एक्चुअली आ गया तुम्हारा 2 plus 2 times cosine of theta minus phi. So it is a square plus b square. So from here you will get cos theta minus phi की वैल्यू क्या? Cos theta minus phi is equal to a square plus b square minus 2 whole divided by 2. And then you substitute this over here. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि tan of theta minus phi by 2 is equal to square root of 1 minus cosine of theta minus phi over 1 plus cosine of theta plus phi. So this is equal to, आगे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा. आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस माइनस, क्योंकि मॉड ऑफ दिस की वैल्यू आएगी. तो यहाँ से आएगा 1 प्लस माइनस क्या आया एक्सप्रेशन? 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बाई 2 ओवर 1 प्लस a square plus b square minus 2 by 2. And after taking LCM and simplifying it turn out to be plus minus square root of क्या आया? 2 minus a square minus b square plus 2. तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 minus a square minus b square and डिनोमिनेटर में क्या आएगा? a square plus b square. And this is the answer for the a part. सिंपल है, आई थिंक इट्स सिंपल. इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी. यहाँ पर भी बस वही थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट है जो यूजुअली आप करते ही हो हर क्वेश्चन में. कुछ एक क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेप 2 स्टेप में रीअरेंज हो जाता है, किसी स्टेप में हमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है. ये हो गया और ये भी हो गया. Shall we move ahead? सबको क्लियर है सारा कुछ? कहीं पर किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. नेक्स्ट टेस्ट कंडीशन में करना है जी. आपके पास में टोटल 5 पार्ट्स दिख रहे हैं, 2 क्वेश्चन है, 5 पार्ट हैं और 5 पार्ट्स के लिए आपको मैं जो टाइम दे रहा हूँ वो 10 मिनट है. इट इज़ ओवर रेटेड टाइम. आप कोशिश करेंगे तो 5-6 मिनट में भी हो सकता है, बट 10 मिनट इज रीजनेबली प्लेंटी टाइम टू वर्क आउट दीज प्रॉब्लम्स. तो बिल्कुल टाइम्ड आउट कंडीशन में करो कि 10 मिनट के अंदर में, मान लो टेस्ट कंडीशन में करना है तो ये हो जाना चाहिए. ठीक है, तो मान लो 10 मिनट का आपका टेस्ट हो रहा है. मैं स्कोर भी इसका बना देता हूँ. ये जो है ये तीनों 6 मार्क्स के हैं. ये 6 मार्क्स का है और ये भी 6 मार्क्स का है और ये भी 6 मार्क्स का है और ये 4-4 नंबर के हैं. ये 4 नंबर का है, ये 4 नंबर का है. दैट्स इट. रादर ये भी 4 नंबर का है. ठीक है, अब आप देखो अपना मैक्सिमाइज करो स्कोर, देखो कितना आता है आपका स्कोर. टाइम 10 मिनट्स है.
क्या प्रोग्रेस है भाई? कौन कौन सा पार्ट हो गया? क्या बात है? वेरी क्वाइट। 7A हो गया, 7B हो गया, साकेत का A एंड B हो गया, वेल डन। 9 का ए पार्ट बचा। हाँ तुम्हारा सुकृत, तुम्हारा कौन सा हुआ? तो 9 का ए पार्ट बचा। 9th का A बता दूं? तो बचा है सर, बाकी होगी वो बचा। अरे वाह, ग्रेट। क्या बात है भाई, आज तो बिल्कुल फॉर्म में है बच्चे। यक्ष ने बोला कि सारे ही हो गए। यक्ष तुम्हारा कौन सा नहीं हुआ? नाइन ए नहीं हुआ। ओके, बाकी सारे पार्ट हो गए। फर्स्ट ए में क्या किया बताओ? यक्ष अनम्यूट करो और बोलो फर्स्ट ए, समझाओ सबको। माइक नहीं है? नहीं बेटा, माइक तो दिया हुआ है आपको, एक सेकंड, नहीं है तभी दे देता हूँ। माइक है बेटा, तुम्हारे पास नहीं है। तुमने ऑफ करके रखी हुई है, ऑन कर लो। चलो ठीक है, मैं फर्स्ट ए डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि इसका ये कई सारा पार्ट पहले भी कर चुके हैं, लाइक दिस इक्वल टू दिस, ये तो पहले भी कर चुके हैं हम, कई बार कर चुके हैं इसी क्लास में। तो 7th क्वेश्चन का ए पार्ट में, इफ यू स्टार्ट विद रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ ए ओवर 1 प्लस साइन ऑफ ए, या 1 प्लस साइन ऑफ ए ओवर 1 माइनस साइन ऑफ ए, और अगर आप RHS ले जाना चाहते थे तो स्ट्रेट अवे कि 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 प्लस साइन ए स्क्वेयर अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मॉड ऑफ 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, दैट इज 1 अपॉन कॉस सीकेंट ए प्लस साइन अपॉन कॉस टैन ए। तो ये तो वन लाइनर था, बट इफ यू जस्ट get to another way, so you could write this as, क्या कर सकते हैं हम इसको? इसको हम ऐसा साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर। कैसे लिखा? तो ये सर डिस्कशन पिछली क्लास में भी हो चुका है। 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू, और साइन ऑफ ए को भी हाफ एंगल में ले गए, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, तो साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस ट्वाइस साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। On the similar line, the denominator can be written as sin a by 2 minus cos a by 2 का whole square. अब a square by b square is a by b का whole square, that is actually mod of sin a by 2 plus cosine a by 2 over sin a by 2 minus cosine a by 2. And if you just divide the numerator and denominator by cos a by 2, it is 1 plus tan a by 2 over 1 minus tan a by 2. And then it can be written as mod of tan of pi by 4 plus tan of a by 2 over 1 minus tan pi by 4 tan a by 2, and hence the result. तो ये tan of
ए प्लस बी कंपाउंड एंगल हो गया π/4 प्लस a/2 का मॉड। तो दिस पार्ट इज डन। तो ए पार्ट इज डन। बी पार्ट वॉज स्ट्रेट अवे। बी पार्ट में बहुत कोई खास कॉम्प्लिकेशन था ही नहीं, क्योंकि LHS अगर बी पार्ट का देखो तो वो LHS स्ट्रेट अवे है 1/cos π/4 प्लस थीटा, मतलब cos a प्लस b into cos a minus b π/4 minus theta. Then applying the identity, cos a plus b into cos a minus b is cos square a minus sin square b. 1/cos square π/4 is 1/2 minus sin square theta. तो एक्चुअली इट इज 1/2 LCM लोगे तो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 1 minus 2 sin square theta, and 1 minus 2 sin square theta is cos 2 theta. So 2/cosine 2 theta, that is equal to 2 1/cos 2 theta is secant 2 theta, and that is RHS. तो this is also done. तो आपने देखा कि ये पार्ट भी सिंपल था, ये पार्ट भी सिंपल था, और सी तो आपको स्ट्रेट अवे दिख रहा होगा डायरेक्ट। यस, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो सी पार्ट भी इक्वली सिंपल था। LHS अगर आप लिखो तो LHS is साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई है, इफ यू कंसिडर दिस एंगल एज थीटा एंड दिस एंगल एज फाई। तो इट इज नथिंग बट साइन थीटा प्लस फाई into sin theta minus phi, and therefore the result theta plus phi is π/4। तो ये हो गया sin π/4, and theta minus phi is a, तो sin a, it is 1/√2 sin a। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे था। तो 4 नंबर फ्री के थे यहाँ भी। अब आते हैं 9th A एंड B में। कौन कौन सा पार्ट हो गया 9th A और 9th B में से? बी हो गया। ए किसी का नहीं हुआ अभी तक? हाँ, किसका? सुकृत? हाँ जी सर। ए पार्ट हो गया बेटा? यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अभी आते हैं ए पार्ट पे। बी पार्ट सब ए पार्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। पहले मैं ए पार्ट को सॉल्व करता हूँ, फिर आप बताना कि ऐसे आपने किया कि कुछ और किया, ठीक है? बी पार्ट में कोई भी दो को आप क्लब कर लो, कोई भी दो को, जैसे फर्स्ट और सेकंड को कर लो, या सेकंड थर्ड को कर लो, या फर्स्ट थर्ड को कर लो, आपकी मर्जी है। LHS, तो बी पार्ट जो है वो LHS एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, जिसको ऐसा लिख सकते हैं हम, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 4π/3 प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2π/3। इट इज नॉट नेसेसरी जैसे मैंने फर्स्ट और लास्ट को क्लब किया, आप भी वैसे ही करो, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। बट कोई भी दो को पेयर करके CD फॉर्मूला लगाओगे तो आएगा 2 साइन C प्लस D/2। तो यही वाला आ जाएगा, ये वाला C प्लस D, मतलब 2 अल्फा प्लस 4π/3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो अल्फा प्लस 2π/3 आएगा, इंटू साइन का इंटू कॉस C माइनस डी या D माइनस C करो तो 2π/3 आएगा, 4π/3/2, एंड प्लस साइन ऑफ 2π/3 अल्फा प्लस 2π/3, एंड देयरफॉर द रिजल्ट। अब cos 2π/3 माइनस हाफ होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2π/3, क्योंकि 2 cos 2π/3 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2π/3, एंड देयरफॉर द रिजल्ट इज 0। ठीक है, वैसे आप इसका कंपाउंड एंगल ओपन कर दो, इसका भी ओपन कर दो, फिर भी कैंसिल होकर के वहां से भी 0 आ जाएगा। बट मैंने आपको जो बताया, जो बिल्कुल शॉर्ट
शॉर्टली, इन कट शॉर्ट करके जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट और थर्ड को क्लब करो, आप सेकंड थर्ड को क्लब करो या फर्स्ट सेकंड को क्लब करो, तीसरा वाला कैंसिल हो जाएगा। तो दिस वाज बी पार्ट। बी पार्ट ऐसे किया था सब लोगों ने। यस नाउ कम बैक टू द ए पार्ट। सर, जो बी पार्ट था उसमें हम एल्फा प्लस 4 पाई/3 और एल्फा प्लस 2 पाई/3 से पाई को बाहर निकाल लेते हैं, फिर वो एलाइड एंगल की रेशियो में माइनस माइनस आ जाता, फिर उसकी हो जाता। अच्छा, मतलब तुमने इसको 2 पाई/3 को लिख दिया पाई माइनस पाई/3, हाँ जी सर। और 4 पाई/3 को लिख दिया पाई प्लस पाई/3, ये यस क्या सर। रहा? यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस साइन अल्फा प्लस पाई/3, और ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस पाई/3, यस सर। और फिर इन माइनस दोनों को माइनस। फिर इन दोनों को वही कर लिया होगा तुमने, साइन सी प्लस साइन डी यूज कर लिया होगा, है ना? हाँ जी सर, फिर फाइनल पे आ जाता है तो जीरो। ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने बोला कैसे भी क्लब करोगे आएगा, चाहे जैसे करोगे ना आएगा। सिटी फॉर्मूला आपको एक स्टेज पे लगाना पड़ेगा, चाहे आप शुरू में लगा दो बाद में लगा दो, आपकी मर्जी। ए पार्ट मैं देखो, ए पार्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या मतलब कैसे आपको स्ट्राइक करेगा इस प्रॉब्लम में कि क्या करना चाहिए, मतलब आपका लाइन ऑफ थॉट क्या होना चाहिए। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये कि ये राइट हैंड साइड को देखो, ये साइंस का प्रोडक्ट है, साइन इंटू साइन, साइन ए साइन बी टाइप का है। और साइन ए साइन बी जो होता है वो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, मतलब दो कॉस का डिफरेंस, कॉस सी माइनस कॉस डी में साइन ए साइन बी आता है। दिस इज वन थिंग विच हैज टू बी thought before you start doing anything for the left hand side expression। तो इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग करना या रिवर्स बैक ट्रैक करना, प्रॉब्लम को जहां जाना है उसके पहले वाले स्टेप पे आने की कोशिश करना, पेनल्टीमेट स्टेप। प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये बहुत ही टिपिकल एक अप्रोच होती है, एक फॉरवर्ड अप्रोच, एक रिवर्स अप्रोच। अब ये इसका मतलब मैं अगर ये लाना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली ये है 1/2 टाइम्स साइन ए साइन बी है, तो कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या आएगा, ए माइनस बी क्या आएगा, साइन कॉस कॉस 5θ/2 माइनस 5θ/2 भी नहीं आएगा, एक सेकेंड, कॉस सी माइनस कॉस डी होगा ना, तो ये आएगा तुम्हारा 2 sin c+d/2, ये c+d/2 होगा और ये c-d/2 होगा। ठीक है, तो मतलब हमें ऐसा चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, कॉस ऑफ c माइनस कॉस ऑफ d चाहिए, ऐसे सोच लो। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात क्या आपको ध्यान में देनी है वो देखो, लेफ्ट हैंड साइड को देखो। लेफ्ट हैंड साइड में 2θ और θ/2 का जो अरिथमेटिक मीन है ये 5θ/2 है। तो अगर मैं इसको और इसको पहले प्रोडक्ट से हटा के सम में ले जाऊं, क्योंकि मुझे सम डिफरेंस चाहिए कॉस का, तभी जा करके होगा। तो प्रोडक्ट से सम में रिड्यूस करने का हमारा एक पहला लिंक मिला कि प्रोडक्ट से सम में करो, तो इसको मैंने ऐसे लिखा 1/2 टाइम्स 2 cos 2θ इंटू कॉस θ/2 माइनस 2 cos 3θ इंटू कॉस 9θ/2। ये हमने किया, पर्पस यही था कि ये पूरा लीनियर हो जाए एक्सप्रेशन रादर देन क्वाड्रेटिक, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। तो ये आएगा तुम्हारा इक्वल टू 1/2, अब क्या आया 2 cos a cos b, cos a प्लस b, तो cos 5θ/2, 2θ प्लस θ/2, एंड प्लस cos a माइनस b, तो cos 3θ/2,
सिमिलरली यहाँ देखो तो cos a प्लस बी इज cos 6 प्लस 9 15 थीटा बाई 2 एंड माइनस cos a माइनस बी करो या b माइनस a करो तो 3 थीटा बाई 2. And this is wonderful because I am getting this term gets cancelled with this term, and so we are almost to the answer. अब देखो तो 1/2 टाइम्स ये क्या हो गया, cos c माइनस cos d वाला फॉर्मेट में आ गया, cos 5 थीटा बाई 2 माइनस cos 15 थीटा बाई 2. ऐसा कभी नहीं होता है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको सीधे सीधे आंसर दिख रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. जो भी अच्छी प्रॉब्लम होती है ना, जिसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, 2-3 डिसीजन मेकिंग होती है, उसमें कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं दिखता है. तो आपको कुछ जहां से चलना है वहां से एक स्टेप आगे, और जहां जाना है उससे एक स्टेप पीछे, ऐसे नैरो डाउन करना पड़ता है सिचुएशन को, और फिर इंट्यूटिवली ही मूव किया जाता है. पहला स्टेप जो है आपको थोड़ा सा लगेगा कि इस डायरेक्शन में जाना उचित है, और फिर 1-2 स्टेप के बाद आपको दिखने लगता है कि इस वे. कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल अपेक होता है सिचुएशन, बट एक स्टेप लेने के बाद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, दिखने लगता है कि अच्छा ये तो आंसर ही आ गया. जैसे यहाँ आ गया देखो, cos c माइनस cos d क्या हो गया, 1/2 टाइम्स 2 साइन c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 तो 5 थीटा हो गया, एंड साइन d माइनस c बाई 2 तो 15 थीटा मतलब 10 थीटा, 5 थीटा बाई 2. 15 माइनस 5 बाई 2 मतलब 10 थीटा बाई 2 बाई 2 तो क्या गया 5 थीटा बाई 2. एंड योर आंसर आ गया कि नहीं. अब सुकृत तुमने क्या किया था, बिल्कुल ऐसी तरह था। बिल्कुल ऐसे किया था ना. हाँ जी सर। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है. तो ये हो गया देखो 7th एंड 9th. अब आप अपने इसमें जो भी स्कोर है उसमें देख लो कहाँ पर आप पढ़ रहे हो, टाइम फ्रेम के अंदर. ठीक है, अगर टाइम फ्रेम के अंदर में मतलब 10 मिनट के अंदर में अगर ये सारे प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसका मतलब अभी थोड़ा स्पीड एक्यूरेसी की कमी है, मतलब थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है. तो प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. मैथ्स में और कोई दूसरा इलाज नहीं है अपने आप को बेटर बनाने का. चलो जी, एक बार फिर से चलो देखते हैं. अगेन यू हैव बीन गिवन अराउंड 5 क्वेश्चंस फिर से. ठीक है, सिचुएशन पिछले वाले जैसे ही है, बहुत टफ अभी भी नहीं है. तो अगेन 5 क्वेश्चन 10 मिनट, कैरी ऑन, जल्दी से आंसर करो. अब इस बार आपका एक्यूरेसी लेवल अच्छा होना चाहिए, लगभग सारे सवाल हो जाने चाहिए, सारे. एक भी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जो ना हो आपसे. ठीक है, तो ट्राई आउट इन 7 मिनट्स. अब तो सारे हो गए होंगे. क्वेश्चन नंबर 10 किसका इसका हो गया, 10th. 10th क्वेश्चन कितने बच्चों का हुआ, जल्दी बोलो. हम्म. Oh no, this is very bad. सिर्फ 2 स्टूडेंट का हुआ. अच्छा कोई बात नहीं है, चलो 10th कोई बात हटाते हैं, 10th के बजाय आप मुझे बताओ 11th किसका इसका हुआ, 11th किसका किसका हुआ ये बताओ. हो गया सर। 11th हो गया, चलो अच्छी बात है. और 12th, हो गया सर। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम जो है वो 10th के साथ हुई है. और 13th, अभी तो बस लास्ट तक लिखा था। हाँ मतलब है 11th एंड 12th पर जरा रिप्लाई करो, देखें कितने लोग का हुआ है 11th एंड 12th. यहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं है.
11th एंड 12th पे चलो 5-6 लोग हैं एटलीस्ट। ओके जी, चलो डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस से नहीं चलता हूँ मैं, एक एक करके फटाफट देखते जाओ। इट्स नॉट अ बैड डील। अगर आपने 3 भी कर ली इसमें से तो अच्छी बात है। एनीवे पहले पार्ट पे जाओ। देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन मोस्टली आपको आइडिया देता है हाउ टू प्रोसीड। ये देख रहे हो, ये आपको, और यहाँ पर लैम्डा है, तो ये आपको एक बात तो क्लियर दिख रहा है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा होगा, है ना। और अगर ये बात आप दिमाग में लेके चलो तो क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसी, बस इतने ही डायरेक्शन पे लेके चलने का। जैसे मैंने बोला कि गिवन से स्टार्ट करते हैं, साइन 2 अल्फा ओवर साइन 2 बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 1, ये दिया हुआ। अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, हमारा सिर्फ एक ही टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम भाई ये लाएंगे, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आपको मिलेगा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा, या साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा ओवर साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 ओवर लैम्डा माइनस 1। अब तो सीडी फॉर्मूला लगाओ और यू गॉट द रिजल्ट। 2 साइन c प्लस d बाई 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 अल्फा माइनस बीटा ओवर साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d बाई 2 अल्फा प्लस बीटा एंड साइन c माइनस d अल्फा माइनस बीटा। It is equal to lambda plus 1 over lambda minus 1. I hope you got the answer now. Sin alpha plus beta by cos alpha plus beta is, इसको ऊपर ले जाओ, tan alpha plus beta, और इस cos alpha minus beta को डिनोमिनेटर में सेंड कर दो तो sin alpha minus beta divided by cos alpha minus beta is tan alpha minus beta is equal to lambda plus 1 over lambda minus 1. This was the only thing to be done, और कुछ नहीं था इसमें जी। ये हो गया, 10th हो गया जी। अब 11th तो स्ट्रेट अवे था, 11th में तो ज़्यादा कुछ इश्यू था नहीं। आई थिंक जिसने भी कर लिया होगा उसको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल था। एबीसी एपी में है, मतलब क्या हुआ कि ए सी इन एपी का मतलब है कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है, ए प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी, क्योंकि b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। एंड ये जो प्रूव करना है हमें, उसमें जो बड़ा वाला एक्सप्रेशन है, लेट अस बिगिन विद दिस एक्सप्रेशन एंड ट्राई टू कट इट शॉर्ट। तो साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ सी ओवर कॉस सी माइनस कॉस ए, ये RHS जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं और CD फार्मूला लगाएंगे तो ऊपर आएगा 2 cos साइन सी माइनस साइन डी है, तो 2 cos a प्लस सी बाई 2 एंड साइन a माइनस सी बाई 2 ओवर डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d है तो 2 साइन c प्लस a बाई 2 साइन d माइनस c, तो a माइनस c बाई 2। So you will observe this one and this one gets cancelled, 2 goes with 2, तो आ गया cot आ गया ना, तो आंसर आ गया, ये आ गया cot a plus c by 2। What is a plus c by 2? B. A plus c is 2, it's cot b आ गया। तो ये भी हो गया। 12th तो स्ट्रेट अवे था, 12th में तो मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है ना, कि है जरूरत है क्या?
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, वही वाला रिजल्ट स्टेट में, वही आइडेंटिटी यूज करनी है। तो देख लो फटाफट जल्दी से। 12th का ए जो है वो स्ट्रेट अवे 12th ए में क्या है, LHS से स्टार्ट करो तो आ गया तुम्हारा साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो 24 प्लस 6 डिग्रीज एंड इनटू साइन ए माइनस बी 24 डिग्री माइनस 6 डिग्री, it is equal to sin 30 degree is half into sin 18 degree. अब sin 18 डिग्री वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड है ना, तो अब वो प्रोसीजर में दोबारा करके नहीं दिखाऊंगा, आप जानते हो कैसे करते हैं। sin 18 होता है √5 माइनस 1/4, तो आंसर आ गया √5 माइनस 1/8। कैसे करते थे sin 18 डिग्री, कैसे निकालते थे, तो थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री and 5 theta is equal to pi by 2 90 degree, then 3 theta is equal to pi by 2 minus 2 theta, then दोनों साइड में cos ऑपरेट कर दो, तो cos 3 theta is equal to sin 2 theta, फिर यहाँ पर लिख दो आप 4 cos square theta minus 3 multiplied by cos theta is equal to 2 sin theta cos theta, फिर cos थीटा कैंसिल कर दो, फिर यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, क्वाड्रेटिक बन गया तुम्हारा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू आई साइन 18 की वैल्यू आ जाएगी, तो आ जाएगा तुम्हारा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 8। तो ऑब्वियसली साइन थीटा पॉजिटिव है क्योंकि थीटा एक्यूट है, तो आ जाएगा √5 माइनस 1/4। तो अगर आपने उस समय नहीं किया है या नहीं ध्यान में है तो मैंने करके बता दिया कि कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है, कई बार इसका जरूरत पड़ सकता है आपको। तो ये भी हो गया, ऐसे ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। ये बी पार्ट में क्या लिखा आपने, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, और कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस 36 डिग्री हो जाएगा, और आगे तो आ ही जाएगा फिर कॉस, ये तो हो गया 1/2 और ये होता है कॉस 36 √5 प्लस 1/4 आ जाएगा। कैसे आएगा, वही तरीका है ना, कैसे आएगा कॉस 36, 1 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर थीटा सीधा आ जाएगा। हाँ वहां से भी आ साइन जाएगा, 18 तो वहां से भी आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो यहाँ से भी आ जाएगा। और वहां से नहीं करना चाहते हो तो 36 इज इक्वल टू थीटा लेंगे ना, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा पाई, तो 3 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा करके साइन ऑपरेट कर दो, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, सॉल्व कर लो, कॉस की वैल्यू वहां से भी आ जाएगी। मर्जी आपकी, आप चाहे जैसे करते हो। तो ये सारे पार्ट हो गए, देखो जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये वाला पार्ट 13th किसका इसका हो गया, 13th हो गया सर। 13th हो गया किसका, सुकृत तुम्हारा हो गया, साकेत नहीं हो सर। ओजस नहीं हुआ सर। मेहनत नहीं कर रहे हो बेटा, इतने चुपचाप क्या हुआ, प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? सभी लोग बताओ जरा ऑनेस्टली, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, सभी लोग बताओ कितने बच्चे हैं आप में से जो डेली मैथमेटिक्स का कम से कम 30 क्वेश्चन करते हैं? सर 30 हो नहीं पाते, मैं बैठता हूँ लेके, वो बुक लेके बैठता हूँ, वो 10 to 15 करते हैं। नहीं बेटा, मैं जो पूछ रहा हूँ उसी का आंसर दो, ठीक है, मैं मान गया आपकी बात को, मान गया कि 10 to 15 करते हैं आप। ये हो जाते हैं।
देखो नॉर्मली ऐसा ना कि यूजुअली जो आप एक दिन क्लास लेते हो उस क्लास के अगेंस्ट में 30-40 क्वेश्चन तो होने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि जैसे मान लो कोई क्लास कोई लेक्चर हुआ, उस लेक्चर के अगेंस्ट में कम से कम 15-20 क्वेश्चन होने चाहिए, 20 क्वेश्चन तो कम से कम होने चाहिए। बट जो अगर कोई अच्छा बच्चा है जिसको रैंक लेनी है, तो ये तो नहीं है ना कि जो टॉपिक चल रहा है उसी के सवाल कर रहे होंगे आप, तब तो रैंक थोड़ी आएगी। उसमें क्या होगा, जो पिछले टॉपिक है धीरे धीरे वाइप आउट होते जाएंगे दिमाग से। तो तरीका ये होना चाहिए कि एवरी डे सपोज यू आर, व्हाई आई सेड दैट 30 क्वेश्चन, बिकॉज 20 क्वेश्चन इज नेसेसरी फॉर करेंट टॉपिक जो चल रहा है उसको उसके साथ जस्टिस करने के लिए, और 10 क्वेश्चन इज नेसेसरी टू जस्ट वर्क अपॉन एटलीस्ट 1 or 2 प्रॉब्लम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टॉपिक विच यू हैव ऑलरेडी डन। तो जो पिछले टॉपिक्स है उनमें से किसी टॉपिक पर किसी दिन 5 कर लिया, किसी पे 5 कर लिया, 2 टॉपिक पे 5-5 कर लिया, या 3 टॉपिक पे 3-3 क्वेश्चन कर लिए। तो ऐसा मतलब पिछले टॉपिक के भी सम्स करते रहने चाहिए आप। उससे क्या होगा, पूरी स्किल्स दिमाग में रहती हैं और रिजल्ट भी दिमाग में रहते हैं, और फिर ग्रेजुअली आपका मेच्योरिटी लेवल बहुत नाइसली शूट कर जाता है। तो 30 क्वेश्चन तो जरूरी है। और अच्छा, 30 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे से ज्यादा चाहिए भी नहीं, ये भी मैं बता दूं, 1.5 से 2 घंटे चाहिए। अगर आप थोड़ा मतलब कि होता है ना प्रोफेशनली करो तो। अब पता चला है आप क्वेश्चन लेके बैठ गए और आपने जो है मतलब क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है लगे हुए हैं, ऐसे नहीं। अगर अगर जैसे मैं एडवाइस करता हूँ वैसे करो कि ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे जो आपको डेली क्लास के अगेंस्ट में आपको कोई गेम डीपीपी दे दी, उसको टाइम आउट करके कर लिया, फिर जो अच्छे सवाल है उसको अलग से ट्राई कर लिया, तो आपको उसी टाइम फ्रेम के अंदर में 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब उसके बाद फिर एक आध सिटिंग और बैठे, 2-2 3-3 सवाल पिछले टॉपिक्स पर, एक एक सवाल 2-2 सवाल कर लिया, तो उससे क्या होगा कि आप एकदम बिल्कुल फ्रेश रहोगे और हर चीज रिफ्रेश रहेगी, और आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा होगा, मतलब मेंटल एनर्जी लेवल बढ़िया रहेगा हमेशा। तो हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहोगे हमेशा, और वही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है विन करने की। तो ये तो आपको किसी भी कंडीशन में अचीव करना चाहिए। और अगर अभी नहीं कर पा रहे तो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो आई बेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर तो मतलब 2-2-2.5 घंटे तो तुम्हारे आने जाने में खर्च हो जाते हैं, तो दिन में वेस्टेज ज्यादा होगी। जैसे ऑफलाइन स्टार्ट होगा वेस्टेज बढ़ने शुरू हो जाएगी। तो इस टाइम में तो आपको कम से कम वो चीज करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ नहीं है, अब फिर यहाँ देखो, फिर से देखो, तो ये इस वाले एक्सप्रेशन का प्रेजेंस ये बताता है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा है। और अगर आप इसकी बात करो तो इससे ये भी, अगर थोड़ा आप मतलब आप फोर साइट है आपके अंदर में, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर चुके हो, और बाय दिस टाइम आप काफी कुछ कर चुके हो, तो इसको देखो, तो ये है अंडर रूट ऑफ, अभी मैं सिर्फ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ इसको, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये है अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर बीटा बाई 2। आई होप यू एग्री। यस सर। तो मैं बोलूंगा ये है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 1 प्लस कॉस अल्फा, और ये है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस बीटा बाई 1 प्लस कॉस बीटा। आई होप यू एग्री। यस सर। यस। और अब तो शायद पिक्चर और क्लियर हो गई होगी कि यहां भी कंपोनेंटो डिविडेंडो का फॉर्मेट है, यहां भी कंपोनेंटो डिविडेंडो का फॉर्मेट है, यहां भी कंपोनेंटो डिविडेंडो का फॉर्मेट है। और कहानी कॉस अल्फा कॉस बीटा ए बी में है, और ये पूरा रिलेशन कॉस अल्फा कॉस बीटा ए बी में है, तो बचा क्या है, होना ही होना है इसको। अब कोई एक लाने की कोशिश करो, फॉर इंस्टेंस अगर मुझे ये लाना है और यहां से, तो आई कैन बिगिन लाइक दिस। 13th क्वेश्चन को देखो ध्यान से, कॉस अल्फा ओवर 1 इज इक्वल टू ए कॉस बीटा प्लस बी ओवर ए प्लस बी कॉस बीटा, ये दिया हुआ है। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी अप्लाई करो, तो आया तुम्हारा कॉस अल्फा -1 अपॉन कॉस अल्फा +1, क्या आएगा इधर, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर विल गेट यू a माइनस बी कॉस बीटा प्लस b माइनस ए, मतलब माइनस a माइनस बी ओवर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर विल गिव यू a प्लस बी
cos beta plus a plus b. सो आई होप अब आपको क्लियर दिख रहा होगा आंसर. a माइनस बी कॉमन लिया और नीचे से a प्लस बी कॉमन लिया, क्या आया? cos बीटा माइनस 1 ओवर cos बीटा प्लस 1. तो यहां से आ गया 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर a प्लस बी, 1 माइनस कॉस बीटा ओवर 1 प्लस कॉस बीटा. तो यहाँ से आ गया tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर a प्लस बी tan स्क्वायर बीटा बाई 2. एंड टेकिंग रूट, mod of tangent of alpha by 2 is equal to square root of a minus b over a plus b mod of tan of beta by 2, and hence the result is proved. तो I think it is okay. तो सिर्फ ये नहीं, क्वेश्चन सॉल्विंग तो चलो देखो, जब भी आप किसी क्वेश्चन के साथ में लगेंगे क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा. बट ये जो क्लासरूम सेशन का पर्पस ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक स्ट्रेटजी आपके दिमाग में डेवलप हो, जो पहले से उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो, नहीं है तो डेवलप हो, कि प्रॉब्लम को कैसे रीड करते हैं, प्रॉब्लम से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो लाना है उसके लिए क्या लाना है, जो गिवन है उससे क्या मिलेगा, और फिर कैसे गिवन से ऑब्टेन्ड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कैसे नैरो डाउन करते हैं, कैसे जीरो इन करते हैं प्रॉब्लम को. दिस यू हैव टू लर्न ग्रेजुअली. एनीवे, तो ये भी उतना टफ नहीं था. गोइंग अहेड, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. अब आ जाते हैं जी, कुछ बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ समेशन ऑफ 3 और मोर एंगल. तो मैंने आपको करा दिया था, है ना. तो जस्ट आप उसको देख लो एक बार, रिव्यू हो जाएगा. साइन ए प्लस बी प्लस सी करने के लिए हमने क्या किया था, दो एंगल को एक एंगल मान लिया था, दो एंगल के सम को, और फिर कंपाउंड फार्मूला लगाया था दो बार. एक बार बी प्लस सी, साइन ए कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस सी, फिर साइन बी प्लस सी या कॉस बी प्लस सी को फिर से ओपन कर दिया था, फिर ऐसा किया था. तो आया था कॉस ए कॉस बी कॉस सी, फिर S1 समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ tan टेकन वन एट ए टाइम, S1 माइनस S3. इसी तरह से cos a प्लस बी प्लस सी जब हमने किया था, ये प्रूफ करा चुका हूं मैं, तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ. cos a प्लस बी प्लस सी किया था तो हमने लिखा था cos a cos b प्लस सी माइनस साइन ए साइन बी प्लस सी, और फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को cos a cos b cos c से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था, तो ये आ गया था 1 माइनस S2 समेशन ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम. इसका प्रूफ करा, ये भी कर चुके थे हम लोग. इसी बात को अगर हम जनरलाइज करें, अब यहाँ पर हम लोग एक बात बोल रहे हैं कि एक नोटेशन बोल रहे हैं कि एसके क्या है. एसके, तो एसके एक नोटेशन है फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल्स टेकन k एट ए टाइम. मतलब अगर मैं बोलूँ S0, तो S0 तो 1 हो गया ऐसे बाय डेफिनेशन. S1 जो होगा वो होगा सिग्मा tan A. सिग्मा tan A मतलब जितने भी एंगल है, tan A1 tan A2 tan A3 tan A4 का सम. और जब मैं S2 बोलूंगा तो जितने भी एंगल्स का tan है उनमें से दो दो के प्रोडक्ट का सम है. सिग्मा tan A tan B बोल रहा हूं मैं इसको. और S3 मतलब होगा सिग्मा tan A tan B tan C, तीन तीन के प्रोडक्ट का सम. तो जितने भी तीन तीन के प्रोडक्ट ग्रुप बनेंगे उनके tan के प्रोडक्ट का समेशन, एंड सो ऑन. इस नोटेशन से हमारा जो tan ऑफ, या साइन बोलो, अगर कोई आपसे ऐसा बोलता है कि साइन ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसा A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, ये फार्मूला क्या बनेगा? तो आप इसको लिखोगे cos का प्रोडक्ट cos A1 cos A2 एंड ऑन cos AN मल्टीप्लाइड बाय
S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 प्लस S आएगा। एंड इसी तरह से cos ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 का फार्मूला क्या होगा? तो ये फिर से प्रोडक्ट में तो यही आएगा, सारे कोसाइंस का प्रोडक्ट, और यहाँ आएगा 1 S0 जिसको बोल सकते हो, 1 माइनस S2 इवन वाले, इवन सब्सक्रिप्ट वाले, प्लस S4 माइनस S6 एंड प्लस ऐसे ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन। और यहीं से tan का कंपाउंड एंगल का एक जनरल रिजल्ट मिल जाएगा, जनरल रिजल्ट A1 प्लस A2 प्लस A3। ये रिजल्ट यूजुअली आपको कहीं मिलेगा नहीं, यूजुअल बुक्स पे नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप समझ लो और याद रहेगा क्योंकि पैटर्न है इसमें एक। वो आएगा S1 माइनस S3 प्रोडक्ट ऑड वाले हैं सारे, प्लस S5 इन द न्यूमरेटर ऑल्टरनेट प्लस माइनस अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 minus S6 and so on in the denominator. So this is the general compound angle result, sin, cos and tan. अब ये 3 के लिए 4 एंगल है, 5 एंगल है, 6 एंगल है, सबके लिए यूज हो सकता है। यूजुअली इसका इस्तेमाल नहीं होगा एक्सेप्ट कि जब हाइपरबोला वगैरह कर रहे हो और बहुत एडवांस लेवल की कोई प्रॉपर्टी इलिप्स और हाइपरबोला में करेंगे तो वहां इसका यूज होगा। और पिछले 18-19 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 20 साल से ऊपर हो गए, तो मुझे नहीं लगा कि जेई में कभी इसको डायरेक्टली यूज किया, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सम प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला एंड एलिप्स दिस रिजल्ट इज यूज्ड, और उस लेवल की कुछ प्रॉब्लम जो है वहां इसका इस्तेमाल होगा, दैट्स इट। तो एक तो एक कंपाउंड एंगल का रिजल्ट था जो पहले मैं करा चुका था, तो जस्ट मैंने रिवाइज करा दिया, ठीक है, ये जनरलाइज रिजल्ट है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन है, इसको आप करना है आपको, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन एक दूसरा दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी है, एक थ्योरम भी है, ऐसा मान सकते हो, राइट। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन ये है कि इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन P is equal to cosine of theta by 2 into cosine of theta by 4 into cosine of theta by 8 into cosine of theta by 16 and on cosine of theta by 2 raised to the power n minus 1 into cosine of theta by 2 to the power n। अब यहां देखो तो दिस एक्सप्रेशन कंटेन्स द प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस ऑफ एंगल्स विच आर इन जीपी। आई रिपीट, क्या है इसमें? एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस ऑफ एंगल्स इन जीपी, जहां पर एंगल सारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं, एंगल सारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को कैसे इवेल्युएट करते हैं? इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये 2 अल्फा है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाओ तो एंगल हाफ हो रहे हैं, तो राइट से लेफ्ट आओ तो एंगल डबल हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये cos A है तो ये cos 2A है। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए, इस एक्सप्रेशन को मैंने एक हिंट दिया आपको, ट्राई टू यूज sin 2A इज इक्वल टू 2 sin A cos A, and it is nothing new, you know it well। तो ऐसे एक्सप्रेशन को अगर हमें सिंप्लीफाई करना होगा तो क्या करेंगे? Do you have some idea how to go ahead? या अगर बोला जाए कि प्रूफ करो कि इट इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 2 raised to the power n
साइन ऑफ थीटा बाई 2 रेज टू द पावर n। ये पूरा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 टू द पावर n साइन ऑफ थीटा बाई 2 टू द पावर n। आगे सर ठीक है हो जाएगा। क्या करें बताओ? सर थीटा बाई 2n को m मान लेंगे तो साइन m साइन 2n साइन 4m ये सारा आ जाएगा, और फिर साइन m को हम जो फॉर्मूला सिंप्लीफाई करते हैं थीटा बाई 2n को क्या कर दें? m मान लो, कुछ भी मतलब नंबर मान लो, कोई वेरिएबल मान लो, कोई एंगल मान ले, a मान ले, तो ये a हो गया cos a, ये cos 2a, cos 3a, ऐसा हो गया ये। फिर तो उसके बाद सर cos 1 और cos 2a को हम लिख सकते हैं sin 2a cos 2a बाई 2 sin a। क्या बोला तुमने? अच्छा, cos a को लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो वहां से रिड्यूस कर लेंगे, सही है, बिल्कुल ठीक है। या ऐसे बोल दो कि जो सबसे छोटा एंगल है ना, ये उसी एंगल के साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो भी हो जाएगा। एक ही बात है, जो तुम बोल रहे हो वो भी वही है, साइन 2 थीटा का फार्मूला तुम लगाने की बात कर रहे हो। तो साइन थीटा बाई 2 की पावर n, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो तो ये क्या है, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए साइन 2a बन जाएगा अगर इसको एक 2 मिल जाए। तो आप यहाँ पर 2 की पावर n कर दो और यहाँ भी 2 की पावर n कर दो, क्योंकि मुझे कई सारे 2 की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ से एक 2 इसको दे दो तो 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a हो जाएगा। तो अगले स्टेप में ऐसा नजर आएगा, cos थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बाई 2 क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट में आया तुम्हारा cos थीटा बाई 2 की पावर n माइनस 1 इंटू ये साइन 2 थीटा बनाया, तो ये हो गया तुम्हारा साइन ऑफ थीटा बाई 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ऐसा है। तो 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 2 आ गया। अब ये फिर से ये 2 इंटू साइन ए कॉस ए, फिर से वही चीज बन गई, ये इंटू है सारा, इंटू 2 साइन ए कॉस ए। तो यही 2 साइन ए कॉस ए वाला रिजल्ट बार बार लगता रहेगा, क्योंकि जो क्रिएट होगा वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक साइन क्रिएट होगा। फिर जब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा से क्लब होगा तो इसके पहले वाले फैक्टर का साइन क्रिएट होगा, ऐसा। तो साइन और कॉस पेयर होते रहेंगे और बार बार ये रिजल्ट रिडक्शन की तरफ जाएगा, एक एक टर्म को क्लब होता जाएगा ये। तो अगले स्टेप में ऐसा आ जाएगा, cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 स्क्वायर cos थीटा बाई 2 क्यूब एंड यहाँ पर आ गया तुम्हारा cos थीटा बाई 2 की पावर n माइनस 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 की पावर n माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 3 एंड प्रोसीडिंग सिमिलरली। लास्ट में आएगा 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा बाई 2, ऐसे चलते रहेंगे जब यहाँ लास्ट में आ जाएंगे, और इधर आ जाएगा 2 की पावर n साइन थीटा बाई 2 की पावर n। मतलब आ गया तुम्हारा साइन ऑफ थीटा ओवर 2 की पावर n साइन ऑफ थीटा बाई 2 की पावर n। तो एक बात तो ये प्रूफ हो गई। दूसरी बात ये भी प्रूव कर सकते हैं यहीं से कि यही चीज को ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा अपॉन थीटा इंटू थीटा बाई 2 की पावर n ओवर साइन ऑफ थीटा बाई 2 की पावर n। लिख सकते हैं कि नहीं? मैंने कुछ नहीं किया, थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और कुछ नहीं किया। अब मैंने यहां से बोला कि देयरफॉर limiting value of p when n approaches to infinity। अगर ये एक्सप्रेशन को इन्फिनिट फैक्टर तक ले लो, इन्फिनिटी तक, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कुछ ऐसा आ जाएगा, साइन थीटा बाई थीटा तो रहेगा ही रहेगा, इंटू लिमिटिंग एक्सप्रेशन
of theta by 2 raised to the power n upon sine of theta by 2 raised to the power n. n approaches infinity. जब n infinity को जाएगा तो ये एंगल बहुत छोटा है, और अगर एंगल बहुत छोटा होता है, इफ एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन ऑफ x इज नियरली इक्वल टू x इफ x इज टेंडिंग टू 0, एंड देयरफॉर ये चीज जो है 1 हो जाएगी लिमिट, तो आंसर आ जाएगा साइन थीटा बाई थीटा. मतलब ये एक्सप्रेशन को इन्फिनिटी तक लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी साइन थीटा बाई थीटा. अब ये तो एक बेसिक फैक्ट था. अब इस फैक्ट में और भी बहुत सारी बात है, जैसे अगर ये एंगल, एक और चीज लिख दो यहीं पर, नोट करके लिखो. इतना लिखने के बाद एक नोट लिखो. नोट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. इफ हमने क्या बोला, हमने ये प्रूफ किया कि P जो एक्सप्रेशन है वो आया तुम्हारा क्या, साइन ऑफ थीटा ओवर 2 रेज टू द पावर n साइन ऑफ थीटा बाई 2 रेज टू द पावर n. एंड इफ थीटा प्लस थीटा बाई 2 टू द पावर n इज इक्वल टू पाई, मतलब जो एक्सप्रेशन आपको मिला उसमें जो सबसे बड़ा एंगल है उसका डबल और सबसे छोटा एंगल का सम अगर पाई है, तो उस केस में तुम्हारा जो थीटा बाई 2 रेज टू द पावर n हो जाएगा बेटा पाई माइनस थीटा. तो साइन ऑफ थीटा बाई 2 रेज टू द पावर n हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, दैट इज नथिंग बट साइन ऑफ थीटा. And therefore sin of theta upon sin of theta over 2 raised to the power n 1 हो जाएगा, और उस केस में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n हो जाएगी, 1 बाई 2 रेज टू द पावर n हो जाएगा. ये बड़ा स्पेसिफिक केस है, और इस सिचुएशन को फॉलो करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इस वजह से, क्योंकि ऐसा है जहां कहीं भी आपको दिखे कि साइन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं या कोसाइन के प्रोडक्ट हैं, और प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 1/64, 1/256, 1/16, 1/32 माइनस 1/32, इस तरह की चीजें प्रूफ करनी हो तो आपको 100% दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये कोसाइन का एक्सप्रेशन बनेगा वेयर एंगल्स आर इन जीपी, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन वेयर एंगल्स आर इन जीपी, और उसमें रिड्यूस करके सॉल्व होगा, और दूसरे तरीके से वो मैनेज नहीं होगा. तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं. कोई क्वेरी अभी तक जो मैंने डिस्कस किया इसमें कुछ अगर पूछना चाहते हो? अरे बोलो भाई, इतने तुम लोग संडे को ना काफी लो एनर्जी में रहते हो, मुझे लगता है तो मुझे कभी कभी लगता है यार कि मैं संडे को, मैं भी अपना संडे क्यों खराब करता हूँ तुम लोग भी एकदम मुरझाए हुए फूल जैसे रहते हो हैं. हाँ दिखा देते हैं, डोंट वरी. पिछली स्लाइड देख लो भाई, क्या था. नहीं उस आपको वो देखना ना, यही देखना था. इसमें भी अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. ओके अच्छा, यहां पर मैंने ये यूज किया कि साइन एक्स इज नियरली इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0. ये मैंने एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपको क्लियर है तो ठीक है, आप पूछेंगे तो ये भी एक्सप्लेन मैं कर दूंगा. इफ यू हैव एनी डाउट, सो डोंट कीप एनीथिंग इन माइंड, बर्डन नहीं रखना है कि अच्छा ये कैसे हो गया. आपको राइट है, आप उसको पूछ लिया करो. चलो क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि कहाँ इसका इस्तेमाल होगा और किस तरह से होगा. चलिए क्वेश्चन करिए फटाफट जल्दी से. ये पहला वाला तो हो ही गया.
पहला वाला तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे वही सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा एंगल्स क्या है, थीटा 2 थीटा 2 4 थीटा ऐसा है, तो आप पहले वाले में तो स्ट्रेट अवे वही सेम है ना। LHS क्या है, 1/2 साइन थीटा अगर कर दो, और फिर ऐसे लिख दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा एंड गोइंग अप टू कॉस 2n-1 थीटा। तो ये यहाँ पर भी 2n आ जाएगा ऐसा। अब एक एक 2 इसको लेता जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक 2 यहाँ से लेगा एज अ फ्यूएल, और ये पटाखे जैसा बजेगा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। अब ये जो साइन 2 थीटा है यहाँ से एक 2 लेगा और अगले वाले के साथ कंबाइन होगा, और फिर से बनाएगा साइन 4 थीटा, वो फिर से एक 2 लेकर के अगले वाले से कंबाइन करके साइन 8 थीटा, ऐसे कंबाइन होता रहेगा। लास्ट में आ जाएगा 2 साइन 2n-1 थीटा इंटू कोसाइन 2n-1 थीटा ऑलरेडी है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 2n साइन थीटा। तो न्यूमरेटर जो है वो बन गया तुम्हारा 2 टाइम्स साइन ऑफ 2n थीटा अपॉन 2 भी नहीं रहेगा, 2 तो चला गया, और डिनोमिनेटर में आ गया 2n मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। अब इन्होंने जो दिया हुआ उसका मतलब इन्होंने बोला कि 2n टाइम्स थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, तो यहाँ से आ गया 2n थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, देयरफॉर साइन ऑफ 2n टाइम्स थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। तो ये साइन 2n थीटा बाई साइन थीटा 1 हो गया, तो आंसर आ गया 1/2n। तो ये बिल्कुल उसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि कैसे वो हुआ, राइट। अब जरा सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट एंड बी पार्ट जल्दी करिए, सेकंड ए एंड सेकंड बी। अच्छा ऐसा करो, इसको आप कर लेंगे क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया है मेरे, तो आप ये दोनों पार्ट को कर लेंगे, ठीक है। और फिर जैसा मैंने बताया था कि कॉन्सेप्चुअली अब कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, तो अभी मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज कहाँ तक सम्स कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको करेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं इस क्लास को क्लोज कर रहा हूँ अभी। सर 1 मिनट, बी पार्ट नोट करना है।